Assalamu alaikum. Hello and welcome to yet another episode of No Fluff with उमायमा शेख। और आज उमायमा शेख के साथ नो फ्लफ में आप हमारे साथ हैं, जिसमें हम लॉन्च कर रहे हैं टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉक सीरीज, कैंसर डायरीज। कैंसर डायरीज इज अ स्पेस दैट ट्रांसेंड्स क्लिनिकल लेंस। इसमें हम हर उस इंसान से बात करेंगे जिसका ताल्लुक कैंसर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। आप कैंसर पेशेंट हो सकते हैं, वो who's fighting actively with an active cancer, या आपने कैंसर को शिकस्त दे दी, you're a cancer survivor, और you're an oncologist, आप डॉक्टर हैं जो दिन रात कैंसर के पेशेंट्स देख रहे हैं, या फिर आप सर्जन हैं और इन एनी अलाइड मेडिकल फील्ड जिसने कैंसर ट्रीटमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन की है। सो कैंसर डायरीज इज योर स्पेस जहां पर आप दुनिया को, अपनी दुनिया के बारे में बता सकते हैं। And our second theme today, we're launching lived experience. Lived experience basically वो जगह है जहां पर हम उन तमाम लोगों से बात करेंगे जो किसी भी हेल्थ कंडीशन से गुजर रहे हैं। ना सिर्फ उन्होंने उस कंडीशन के बारे में पढ़ा, उसको देखा, बल्कि उन्होंने वो बीमारी या वो कंडीशन जी। They're living through that experience, so that is lived experience. Today we open both of these themes with a very courageous woman, Lubna. Assalamu alaikum, Lubna. How are you? Walaikum salam, Dr. Maima. I'm very well. Thank you very much. Okay, मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ, when I was looking at your introduction, there's mashallah a big, full comprehensive introduction and an exhaustive list, but I'll try to sum it up. Lubna, mashallah, is a seasoned development professional with over 20 years of leadership in some of the world's leading humanitarian organizations, including IRC, Mercy Corps, Oxfam, and Action Aid. She has been involved in strategic planning, gender and safeguarding, emergency response, governance, climate resilience, partnerships with government and donors, and contribution to very, very powerful policy reforms. Also, she has an Australian Awards ambassador. She is an Australian Awards ambassador and a thought leader. Lubna, आज हमारे साथ है not as a professional, but as a very courageous person, a woman who's living through cancer and a voice that is breaking silence. Lubna, मैंने बहुत बोल दिया. So the stage is yours. सबसे पहले तो I need to ensure, are you comfortable? Whenever you feel overwhelmed or whenever you feel tired, if you need a break, just say so and we can stop. We can take a break. लुबना, हमें बताइए अपनी स्टोरी के बारे में, कैसे पता चला कैंसर का एंड हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? So, Dr. Maima, sharing my story, I would say that I was like other patients, I was not expecting it. ओके Um, the way it got diagnosed was कि हम लोग उम्रा पे गए थे ओके और the year before. My father was also a cancer patient actually. ओके He was a he was diagnosed with pancreatic cancer or last stage. So the doctors had given up उसके ऊपर. So we wanted to take him to Umrah, so we all planned. And it was that time जब अब पासपोर्ट जो थे वो बन नहीं रहे थे जी और आई थिंक वी वर द ओनली फैमिली जिनमें अभी हमारे डैडी के भी पासपोर्ट थे और पेरेंट्स के पासपोर्ट रहते थे, बहन के, उनकी फैमिली के. वी ऑल वांटेड टू गो टुगेदर एज अ फैमिली. सो आई थिंक वी वर द ओनली फैमिली जिनका वो पासपोर्ट उस वक्त वो बना और वी वर एबल टू गो. ओके और उम्र में आपको पता है कि तमाम दुनिया से लोग आए हुए होते हैं और वहाँ पे अक्सर आप कैच कर लेते हैं फ्लू वगैरह. तो जब वापस आए तो ऑलमोस्ट everyone in the family we had cough and related symptoms. तो बाकी सबके तो ठीक हो गए लेकिन मेरा जो था वो ठीक नहीं हो रहा था कफ किसी भी तरह से. ओके So in my previous organization I had a doctor. He is the director of a large program there. ओके So मैं उसको मजाक में कहती थी क्योंकि we were working on TB those days. तो मैं उसको मजाक में कहती थी कि कि मुझे कफ ठीक नहीं हो रही है, ड्राई कफ है और तो मुझे लगता है कि मुझे टीबी हो गई है. एंड ही यूज्ड टू ओके से कि मैं खुदा का खौफ करे, आप कैसी बातें कर. तो ओके कभी क्योंकि वो एलर्जी उस वक्त काफी ज्यादा फैली हुई थी, स्मोक का टाइम था, तो कभी वो लगा कि शायद स्मोक की वजह से ठीक नहीं हो रहा है. सो आई वेंट टू अ ईएनटी स्पेशलिस्ट इस्लामाबाद में ही. ओके उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी लेकिन उससे फिर ठीक नहीं हुआ. सो आई वाज अगेन बिफोर हर थोड़े दिनों के बाद और उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन चेंज करके दी, उससे भी ठीक नहीं.
फिर अगली दफ़ा जब मैं गई तो शी वाज़ लाइक कि लुबना मैं ओपीडी में बैठती हूँ और वहाँ पे इतनी तरह-तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनको मैं एक डोज़ देती हूँ एंड दे गेट बेटर विद इट। लेकिन आई हम्म डोंट नो कि तुम्हें क्या क्यों ठीक नहीं हो रहा है। सो हम्म शी गेव मी सर्टेन टेस्ट जिसमें एक सी रिएक्टिव प्रोटीन का भी टेस्ट था। हम्म जब सी रिएक्टिव प्रोटीन का टेस्ट करवाया तो इट्स वैल्यू वाज़ एक्सट्रीमली हाई, आई वुड से ओके एक्सट्रीमली हाई, नॉट ओके थोड़ी हाई। हम्म सो जब उनको टेस्ट रिजल्ट्स भेजे तो शी सेड कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं। तो उस वक्त हम्म अपने फादर की वजह से वी यूज्ड टू गो टू शिफा इंटरनेशनल। ओके तो वहीं पे फिर माय सिस्टर रश्मि टू शिफा। हम्म और वहाँ पे आई वुड से कि जो डॉक्टर थी वहाँ पे इमरजेंसी में उस वक्त, मैं उनको दुआएं देती हूँ कि उनकी वजह से मेरा कैंसर जो है वो डायग्नोस हुआ। ओके क्योंकि कफ थी तो पहले शी सेड कि अपर बॉडी का हम सीटी स्कैन करवा लेते हैं, फिर समहाउ शी सेड कि नहीं, हम लोअर बॉडी का भी साथ ही करवा लेते हैं। अच्छा, अब इतने अरसे से डॉक्टर उमैमा वी वर गोइंग टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ माय फादर। सो वी न्यू कि जब आपको साइड पे कोई डॉक्टर या कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो आपको साइड पे बुला के कुछ कहना चाहता है तो देयर इज हम्म समथिंग रॉन्ग। हम्म तो जब उसके रिपोर्ट्स आए इसी टाइम के अंदर दे गॉट माई CA 125 डन एज वेल। ओके तो जब रिपोर्ट्स आई मैं वहाँ पे बेड के ऊपर लेटी हुई थी एंड दी इंचार्ज शी कॉल्ड माय सिस्टर कि आप जरा साइड पे आ जाए। एंड आई वाज लाइक कि चलो लुबना कुछ निकल आया यहाँ पे, मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये कैंसर होगा। हम्म तो जब माय सिस्टर केम बैक शी सेड कि हाँ सुबह हमने डॉक्टर को दिखाना है तो देख लो कि तुमने यहीं पे रुकना है रात को या वी कैन कम बैक टुमारो इन द मॉर्निंग एज वेल। हम्म आई वाज लाइक कि आयशा, आयशा इज माय सिस्टर्स नेम। आई वाज लाइक कि आयशा क्या है? शी सेड कि नहीं कुछ भी नहीं है, बस वो कह रही हैं क्योंकि कफ बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर को भी दिखा लेते, तो हम्म वो सुबह आएंगी और वो देख लेंगी। आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, अगर सुबह आएंगी तब फिर हम घर चलते हैं। फिर हम वी केम बैक द नेक्स्ट डे, वी वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे कुछ चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। हम्म तो जब वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट तो उनके अंदर से वहीं से जो हिस्ट्री ले रही थी उनकी असिस्टेंट वहां हम्म से आया कि हाँ ये देखो ये तो इसके अंदर ट्यूमर नजर आ रहा है। आई वाज लाइक चलो ये तो कंफर्म्ड हो गया। देन ओके शी सेड कि अच्छा ये तो है, इट्स नॉट अ डायरेक्ट केस, आई नो इट्स एन ऑन्कोलॉजिकल कैंसर, लेकिन आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा दें। एंड शी ऑल्सो रेफर्ड मी टू अ पल्मोनोलॉजिस्ट। ओके पल्मोनोलॉजिस्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट माय केस, आप किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा दें। So that's how, my journey into this disease started Started. actually. Okay. फिर वहाँ Okay. से फिर Before we go into the details of the treatment and the whole journey, somebody who's making the world go round, माशाल्लाह मैं आपकी देख रही थी इंट्रोडक्शन जो देख रही थी, बहुत सी चीजें अभी मैंने नहीं पढ़ी because they're so exhaustive and they're so long. माशाल्लाह, you were very very active in your career, in your field, in your life. So somebody who's making the world go round in her own sphere, involved in policy reform, donor engagement, and you name it, and you were there in the development world. और एकदम से कैंसर, मुझे, how did you brace that initial झटका or shock? Tell me about how did you take it? डॉक्टर महिमा आई वुड से कि उस वक्त शायद मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं डाइजेस्ट कर सकूं। Okay. क्योंकि जब मेरी फर्स्ट की मतलब doctors had given up on my father, so it was Okay. that time. So we All were right. very busy with him, Hmm. keeping him into life and taking care of him. तो साथ साथ ये भी शुरू हो गया था। Hmm. और but yes, it hit me very hard कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। And my mother, my brother and my sister, they were all very concerned क्योंकि हम एक तरफ देख रहे थे कि बिल्कुल एक्सट्रीम केस था हमारे पास और इधर भी एक स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ था। आई हैड स्टेज 4 कैंसर, ओवेरियन कैंसर, जब उसकी डायग्नोसिस हुई और बाद में जब बायोप्सी वगैरह करवाई तो Hmm. उसमें ये था कि आई हैड एट दैट टाइम आई मस्ट एक्नॉलेज कि मेरी जो सुपरवाइजर थी शी वाज वेरी वेरी सपोर्टिव। सो शी सपोर्टेड मी इन प्रोफेशनल एरिया के अंदर और पर्सनल एंड के ऊपर मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, दे रियली रियली सपोर्टेड मी। तो वो हिट उसने बहुत स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आई वाज एबल टू टू मेंटेन माई सेल्फ। और जो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपनी जितने भी चैलेंजेस आते हैं उनसे मैं एक पॉजिटिविटी निकालती हूँ। ये नहीं है कि अच्छा ठीक है ये हो गया तो बेड पे ही बैठ जाना है या Hmm. कुछ Hmm. कर नहीं सकते आप, या यू नो आप हर वक्त यही सोचते रहें कि
बिल्कुल एक्सट्रीम आप नेगेटिव चीज़ें सोचते रहें। तो एक पॉजिटिविटी हर चीज़ से निकालने का जो एलिमेंट है और एक जो रेज़िलियंस मेरे अंदर है आई वुड से, हम्म उसने दैट हेल्प्ड मी टू कम बैक एंड सी कि अच्छा चलो अगर ये डायग्नोज हो गया है तो अब आगे इसको किस तरह से आपने इसको एड्रेस करना है, हम्म। किस तरह से इससे बाहर आना है। और बैक ऑफ माइंड तो वो चीज़ें चलती ही रहती हैं, सारी सी बात है, एक इंसान है हम, और आपको ये होता है कि कैंसर डू यू ये थिंक कैसे हो। कि आपके फादर का चूंकि एक टर्मिनल चीज चल रही थी, इज योर फादर स्टिल अराउंड? नहीं, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर। इन ही पास्ड द ओके। सो डू यू थिंक कि उनकी उनके सारे प्रोसेस की वजह से ये ब्लो आपने, जैसे आपने मेंशन किया कि वो इतना उस तरह हिट नहीं, absorb नहीं कर सके, आप एक्नॉलेज नहीं हुआ, probably you were busy with that, but how far along in your whole journey, ये जो आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, आपके इवन इन्वेस्टिगेशंस होनी थी, उसके कितने अरसे बाद your father left you? So yeah, so it was my second chemo। Okay. दिन में मेरी कीमो थी और उस वक्त डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था। इट वाज राइट बिफोर जो छोटी ईद है उसके बिल्कुल बाद में लास्ट ईयर था। Okay. और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था तो 13th को, आई थिंक 13th को, मेरी 13th अप्रैल को मेरी सेकंड कीमो थी और उसी रात तकरीबन 1:30 बजे माय फादर पास्ड अवे। और डॉक्टर जो, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव कैंसर था, हम्म फोर्थ स्टेज थी एंड दे हैड टू कंट्रोल हम्म इट ताकि हम सर्जरी की तरफ जा सकें। सो जब मैंने अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से हमने बात की तो शी सेड कि आप मैक्सिमम एक दिन आप आगे लेकर जा सकते हैं कीमो को, इससे हम्म ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो फिर वी वेंट कि अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह का नाम लेते हैं और इसी दिन करवाते हैं। और उस दिन भी इसी तरह सा था कि कीमो सेंटर शिफा का नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है और ऊपर मेरे फादर ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड उस दिन। सो आई आस्क्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन कि मुझे ज़रूरत है, क्या तुम आ सकती हो शिफा? और उसने ये भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसने कहा कि अच्छा मुझे टाइम बताओ मैं आ जाऊंगी। तो हम्म वो फिर मेरे साथ कीमोथेरेपी के सेशन के दौरान वो बैठी रही एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली देवर कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं मेरे पास। हम्म। तो वो इस तरह से चल रहा था वो दिन। सो ये टाइम था जब डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट चल रही थी मेरी। हमारी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा कैंसर है। आई थिंक आजकल somehow it's happening. I'm a doctor and I every other day I get reports, every other day I get to talk to my colleagues जिसमें कैंसर अब इस तरह डायग्नोज हो रहा है, मे बी इट्स एन ओवर एग्जैजरेशन, बट वाकई इस तरह डायग्नोज हो रहा है जैसे पिछले ज़माने में डायबिटीज़ डायग्नोज होती थी। तो इतनी ज़्यादा कैंसर जो हैं वो सरफेस हो रहे हैं एक दो सालों से बहुत ज़्यादा। एंड हमारी अपनी फैमिली में भी बेतहाशा कैंसर है। एंड वी समटाइम्स आई थिंक कि खुदा ना खास्ता प्रॉबेबली मेरी मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स दोनों दे आर कजन मैरिजेस। सो मुझे लगता है कि या तो मेरी अगर किसी खुदा ना खास्ता डिजीज से डेथ हुई तो या तो वो स्ट्रोक होगा या फिर कैंसर होगा, बिकॉज इट्स सो प्रेवलेंट इन आवर फैमिली। तो एंड ऑल्सो जिस तरह आप बता रही हैं कि आपके फादर का भी साइमल्टेनियसली आपका, वी हैड द सिमिलर थिंग इन विद आवर खालास, वन डाइड ऑफ pancreatic cancer and within few months my another khala, she is now diagnosed with breast cancer, वो भी एडवांस स्टेज में। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर के बहुत अच्छे चांसेस है अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए, बट हमारा डायग्नोसिस भी बहुत एडवांस लेट होता है। टेल मी अबाउट द प्रोसेस जब आप ट्रीटमेंट जर्नीज आपकी स्टार्ट हो रही, पहले तो वो सारे स्कैन्स एंड एंजाइटीज, एंड आई वाज रीडिंग योर पोस्ट तो उसमें आपने स्कैन एंजाइटी के बारे में बात की थी। उस वक्त आप मुझे बताइए, स्कैन एंजाइटी इज दैट एंजाइटी जो आप हर टेस्ट या स्कैन से पहले आपको फील हो रही होती है। टॉक मी थ्रू योर जो खदशात और जो एंजाइटी उस वक्त आपकी आपका मेंटल प्रोसेस था, ऑल्दो यू प्रोबेबली वर नॉट टॉकिंग बिकॉज ऑफ योर जो कंडीशंस आपकी फैमिली में चल रही थी, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड फॉर दीज टेस्ट्स? उसमें डॉक्टर मेमा, मुझे लगता है कि दो टेस्ट जो हैं वो हम मुझे हमेशा परेशान करते थे और अभी भी करते हैं। हम्म। एक जो है वो जो ब्लड रिपोर्ट होती है आपकी, कंप्लीट ब्लड रिपोर्ट वो, और दूसरी CA 125। ओके। अभी भी CA 125 हर 3 वीक्स, सॉरी हर 3 वीक्स कह रही हूँ, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी 2 to 3 मंथ्स अभी भी मंथ्स में। CA 125 और अभी भी नेक्स्ट वीक मेरा ड्यू है। हम्म और दूसरा जो है वो CBC, हम्म जिसमें आपके प्लेटलेट्स और रेड ब्लड सेल्स और WBCs के काउंट्स और हम्म बाकी काउंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये दो स्कैन्स जो हैं, और साथ में अगर CT स्कैन आपका होना हो, तब तो फिर आपके दिमाग में एक लेटे हुए वहां पे भी एक अजीबो गरीब सी वो चीज़ चल रही होती है कि अच्छा पता नहीं कुछ निकल ना आए, अच्छा रिपोर्ट हम्म आएगी तो पता चलेगा।
तो कभी कभी तो ये दिल करता है कि बस आपको जो स्कैन कर रहे हैं वो उसी वक्त बता दें कि क्या आपकी रिपोर्ट्स हैं और किस तरह से आपके किस तरफ को आपके टेस्ट चल रहे हैं। वो और वेटिंग टाइम मुश्किल है ना रिपोर्ट का वेटिंग जो है टाइम ना। इज वेरी हाँ। किलिंग। हम्म। वेटिंग टाइम इज वेरी किलिंग। और दूसरा ये है कि लेकिन जब आपकी रिपोर्ट आ जाती है और आपके लेवल्स जो हैं वो रेंज में होते हैं तब फिर यू फील वेरी सेटिस्फाइड। सो हम्म। 2 वीक्स उसके बाद आराम से गुजर जाते हैं। उसके बाद जब थर्ड वीक दोबारा जाना होता है और दोबारा टेस्ट करवाना होता है हम्म। तो वो फिर से यही चल रहा होता है कि अच्छा पता नहीं इस दफ़ा क्या होगा। तो हम्म। ये जो है बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती रहती है। जब ना अभी भी अल्लाह कैंसर। का शुक्र। जी आप बोलिए बोलिए। आई वाज सेइंग कि अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि आई एम 7 मंथ्स पोस्ट माय हिस्टेक्टमी। ओके। और अल्लाह का शुक्र है कि 6 मंथ स्कैन जो था दैट केम क्लियर एंड मेमोग्राफी आल्सो केम क्लियर। अच्छा। लेकिन जब ये वाला स्कैन होना था तब आई मीन it was a very difficult time to cope up with that stress. इनिशियली आपका स्प्रेड कहाँ कहाँ था जब आपका डायग्नोसिस हुआ तो? इनिशियली जो है आई हैड इट इन माय ओवरीज। ओके। प्लस इसके अलावा आई हैड एसाइटिस और प्लूरल भी था मेरे। ओके। तो वो उसके अंदर भी था और ओवरीज के अंदर भी था। सो एसाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन करवाई मैंने काफ़ी दफ़ा हम्म। इनिशियली। हम्म। और एसाइटिस को भी रिमूव करवाया और फिर बाद हम्म। में वो फिर ट्रीटमेंट के थ्रू और जो कीमो हम्म। थी उसके थ्रू फिर फॉर उसको माई रिमूव। ऑडियंस हम बताते चले एसाइटिस के जब भी इस तरह का कोई प्रोसेस होता है नॉट नेसेसरली कैंसर में बाकी कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में भी हो जाता है। लेकिन कैंसर की अभी हम बात करें तो इसमें जब पेट में पानी जमा हो जाता है और इस तरह का पानी जो है जब लंग्स में या प्लूरल स्पेस में जमा हो जाता है दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। और उसी की वजह से आपको खांसी कंटिन्यूस थी जो ठीक नहीं हो रही थी। सो जी बिल्कुल। ओके सो नाउ आई मीन माशाल्लाह वी आर टॉकिंग और अभी जितनी देर से हम बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह आप ब्रेथलेस भी नहीं है और खांस भी नहीं रही। सो दैट हैज बिन लाइक डेल्ट विद प्रॉपरली। कैंसर की तकलीफ को 100% वो ही बंदा समझ सकता है हु इज लिविंग थ्रू इट जो उससे गुजर रहा है। हम लोग देखते हैं हम पहचानते हैं वी एम्पैथाइज एज डॉक्टर्स। लेकिन आपके आसपास के लोग जब आपको तसल्ली देते हैं पॉजिटिव रहने का कहते हैं इवन डॉक्टर्स जब बात करते हैं आपका अपना मेंटल प्रोसेस उस वक्त परसीव कैसे करती हैं मतलब दूसरों की जो एडवाइस है या दूसरों की पॉजिटिव रहने को या जो ठीक हो जाएगा ठीक हाउ डू यू वो प्रोसेस बताइए कि दूसरे की बात आपको डायरेक्टली आप इसको एडजस्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं मान लेती हैं या आपको लगता है कि नहीं तकलीफ मुझे हो रही है दी अदर पर्सन डजंट नो? आपने काफ़ी बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मैमा कि अनलेस हम किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं होते और हम वो चीज़ उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। जब तक मैं ऐसी किसी सिचुएशन से नहीं गुज़री थी, मैं भी बहुत आराम से बात कर लेती थी, लेकिन फिर बाद में समझ आया कि कहना आसान होता है। हम्म। जो सुनने वाले और जो रिसीविंग एंड के ऊपर होता है, उसके लिए शायद वो चीज़ समझना कि आप किस पर्सपेक्टिव में वो कह रहे हैं, वो मुश्किल होता है। आप शायद अपने गुडविल में वो बात कर रहे होंगे। हम्म। लेकिन कहने का तरीका शायद सुनने वाले को उस तरह से क्योंकि वो उस चीज़ से गुज़र रहा होता है, तो वो उसे उस तरह से नहीं ले सकता, हालाँकि आप शायद अपने अच्छे गुडविल में ही वो बात कर रहे होते हैं। तो लोग उस वक़्त भी यही कहते थे कि नहीं तुम यंग हो, एक तो पहले ये होता था कि बहुत यंग एज के अंदर कैंसर हो गया, अच्छा क्या होगा, अब किस तरह से होगा, अब ट्रीटमेंट ऐसी है, ये तो और फिर कीमो के बारे में जो एक शुरू से हमारे दिमाग में बचपन से ही ये चीज़ बैठी होती है हम्म। कि कीमो के अंदर आप गए तो फिर तो आपने बचना ही नहीं है। हम्म। ये वाली सारी चीज़ें और फिर यही बात जो आपने की कि अच्छा लोग जिस तरह से आपके आसपास जो लोग होते हैं वो जैसे बात करते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आपने कुछ चीज़ पढ़ी होती है, आपने उसके फैक्ट्स हम्म। देखे होते हैं, आपने हम्म। उसका डेटा देखा होता है, तो आपके बैक ऑफ माइंड में ज़ाहिर सी बात है, मेरे बैक ऑफ माइंड में भी ये होता है कि अच्छा ठीक है, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हम्म। करेगा कि ये ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी इस चीज़ से। लेकिन डेटा भी ये चीज़ें कहता है। तो एक हम्म। कॉन्फ्लिक्ट आपके जहन में एक चल कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी इस अपने आप को इस स्टेज में नहीं देखना चाहता हम्म। और कोई भी बिल्कुल अपने आप को ये नहीं इमेजिन कर सकता कि मेरा मैं इतनी जैसे आपने कहा कि प्रोफाइल ऐसा है कि मैं इतनी एक्टिव हम्म। ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है या अभी तक का मेरा इतना एक्टिव सारा लाइफ रही है और अब हम्म। एकदम से मैं बेड के ऊपर आ जाऊँगी और एकदम से मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। हम्म। तो आप ठीक होना हर इंसान चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो एक एक्टिव लाइफ गुज़ारे। तो हम्म। वो कॉन्फ्लिक्ट आपके ज़हन में चलता ही रहता है जब लोग आपको कहते हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है फिर मैं अपने आप को ये भी
समझाती हूँ या अपने आप को ये भी बताती हूँ कि हर एक इस चीज से नहीं गुजरा, हर एक इस चीज को नहीं समझ सकता कि इस बात को कहने का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आपको वो चीजें भी साथ में लेकर चलनी होती है। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ इक्वेशन अगर आप उस एंगल से भी समझने की कोशिश करें तो दैट हेल्प्स यू इन कंटिन्यूइंग योर जर्नी एंड कंटिन्यूइंग योर फाइट विद इट। एक जिस तरह आपने बताया एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक होप एंड डिस्पेयर की टग ऑफ वॉर चल रही है, और इस टग ऑफ वॉर में बाज सपोर्ट सिस्टम्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. सो व्हाट हैज योर सपोर्ट सिस्टम बीन लाइक, एंड हु डू यू थिंक was the main pillar of your hopes and strength and positive support? सो डॉक्टर मैमा, अपनी होप और अपनी सपोर्ट को मैं दो प्रॉन्ग कहूँगी। एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस आप कह सकती हैं, और दूसरा जो कि आपके साथ बाकी लोग होते हैं, आपकी इन्वायरमेंट होती है, उसको आप ले सकते हैं। स्पिरिचुअली इस पूरे जर्नी में मेरा अल्लाह के ऊपर बिलीफ जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया, अपने फेथ के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता गया। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी इस तरह से देती हूँ, जैसे जब कीमो चल रही थी तो आई हैड 8 राउंड्स ऑफ कीमो। सो आफ्टर लाइक 5th और 6th राउंड माय ऑन्कोलॉजिस्ट वाज कि लुबना हो सकता है, क्योंकि इतने कीमो चल रहा था, तो शी सेड कि हो सकता है कि प्लैटिनम रेजिस्टेंट हो जाए। और तो मेरे मुंह से सिर्फ उस वक्त ये निकला कि कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो वो अल्लाह मालिक जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अ, एक आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है और आपको एक ड्राइव देता है कि आपके साथ कोई है। और साथ में जितनी दुआएं हैं या सूरह रहमान है, वो मैं अभी भी सूरह रहमान सुनती हूँ, उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ है। अम, इसी तरह से ये बिलीफ बनता गया और आगे चलता गया। और साथ ही साथ जो मैं आप कह रही थी कि जो आपकी एनवायरनमेंट के अंदर आपका सपोर्ट होता है, जैसे माय फैमिली, दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव इन दिस जर्नी। और उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इकट्ठा रखा, हम सारे इकट्ठे रहे इसके अंदर, और इनकरेज करते रहे कि नहीं, इससे हमें निकलना है, नहीं, इससे हमें निकलना है। और साथ ही फ्रेंड्स का जो सर्कल रहा मेरे, कुछ कम होते गए लोग इस पूरे जर्नी के अंदर। शायद वो लोग समझ नहीं सके जब मैं अपनी बात उन्हें कहती थी, तो वो कम होते गए। लेकिन जो रह गए, जो थोड़े लोग जो फ्रेंड्स मेरे हैं, दे ऑल्सो वेरी मच सपोर्टेड मी इन माय जर्नी, एंड कीपिंग माय मेंटल पीस अपनी जगह के ऊपर कि कोई बात नहीं, ये हो जाता है, हो जाता है, तुम जैसे थे हम वैसे ही इससे निकलेंगे। कोई सपोर्ट चाहिए, कोई चीज़ है, कहीं पे जाना है, कहीं पे कुछ काम है, तो जस्ट हमें बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और बार-बार ये पूछना कि अच्छा अब क्या, इस जर्नी को समझने की साथ-साथ कोशिश करना, हम फॉलो सबने, फॉलो करते सब लोगों रहना. ने एग्ज़ैक्टली हाँ. फॉलो करना, सबने इकट्ठा इसको समझने की कोशिश की। और फिर बताना कि अच्छा नहीं, सपोर्ट इस चीज़ में भी करना कि अच्छा, एक तरफ से अगर एक रिपोर्ट आ रही है तो चलो इसको, मैंने ये भी पता किया है और ये भी है, और इसके अंदर ये पॉजिटिव एलिमेंट है कि कैसे इसको आगे लेकर चलना है। तो people इस are तरह से trying people are and friends are trying to help you out. कोई ट्रीटमेंट एग्ज़ैक्टली, बता रहा है, कोई किसी का बता रहा है. बिल्कुल, लुबना, मुझे कभी लगता है कि देखिए, हम जब बहुत ज्यादा हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल होते हैं, यू आर, आप लिंक्डइन पे ही मुझे मिली, हमने हमने वहीं पर हमारा एक दूसरे से बातचीत शुरू हुई. तो लिंक्डइन इज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स के जहाँ सारे प्रोफेशनल्स होते हैं. यू आर ऑलमोस्ट शाइनिंग योर अचीवमेंट्स, और सारा वक्त पोस्ट ही ऐसी होती हैं कि लगता है कि एवरीबडी इज सो सक्सेसफुल इन एवरीथिंग. एंड उस सारे झमघट्टे में एक फिल्टर अल्लाह ताला इस सिचुएशन ऐसी सिचुएशंस में दे देता है जहां पर यू नो पीपल्स रियलिटी ऑफ लाइफ, कि एक्चुअली जिंदगी या लाइफ की रियलिटी है क्या, और हु इज ट्रूली माइन एंड हु रियली केयर्स. एक तो होता है ना कि एक वो पूरा इकोसिस्टम चल रहा है, उसमें सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो उसके साथ आपको एक सपोर्टिव कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला हुआ है टू फंक्शन एट योर बेस्ट. लेकिन फॉर यू एज अ पर्सन हु हैज सम वैल्यू, तो वो वैल्यू रिलेशनशिप्स, वही जैसे आपने बताया कि कम होते गए लोग, लेकिन देयर वर सम पीपल हु वर लेफ्ट बिहाइंड. और वो फिल्टर होता गया एक्चुअली इस सारे प्रोसेस में, कि हु वाज एक्चुअली योर्स एंड हु वर ट्रूली योर्स. You meant you had some value in their life and they have value in their life, so they stayed back, and baki is just noise. um,
when we talk about, जैसे भी आपने बताया, have you always been spiritual, या it has just developed with this particular challenge in your life? आपका ताल्लुक अपने क्रिएटर से, अपने रब से, was it always there? Yeah, I think it's a newfound feeling that you're feeling at the moment. Hmm. So, Dr. Mema, the relationship was always there. I've Hmm. always been a believer Hmm. or always find my strength in it. It's just कि got strengthened over time इस सारे जर्नी के थ्रू, क्योंकि आप कुछ चीज़ें आप साथ साथ कभी कभी जिंदगी में जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब आप फॉर ग्रांटेड बहुत सारी चीज़ें ले रहे होते हैं। हाँ, हम मेरा एक खुदा है, मैं ये भी करती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। आई वोंट से कि मैं क्या क्या अच्छाइयाँ Hmm. करती हूँ, Hmm. लेकिन मैं ये सब कुछ करती हूँ। लेकिन बस वो एक फ्लो में आपका चल रहा होता है और आप शायद सोच नहीं रहे होते हैं उस तरह से Hmm. कि कहाँ से आ रही हैं ये सारी चीजें, सब कुछ, और किस डायरेक्शन में आपको लेकर चल रही। तो इस सारी जर्नी के अंदर वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का एलिमेंट था और सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो टाइम मिला मुझे, लुकिंग विद इन, लुकिंग एट द एलिमेंट्स अराउंड मी, तो वो स्ट्रेंथन होता गया इस सारे प्रोसेस में। सो आई वोंट से कि इट्स अ न्यू फाउंड थिंग, Hmm. दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर, लेकिन ये स्ट्रेंथन हुआ इस सारे जर्नी के अंदर और उस जो बिलीफ था वो और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। Mhm. And how strengthening it was strengthening day by day. But उससे, जैसे आपको लगता है रात को 1:30 बजे आंख खुल रही है, कीमो चल रही है या नहीं कीमो चल रही है, आप बेड पे हैं, पीपल आर स्लीपिंग, डॉक्टर्स आर स्लीपिंग, पेरेंट्स आर स्लीपिंग, सिबलिंग्स आर स्लीपिंग, बाज दफा आपका पार्टनर, आपका स्पाउस सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, सब सो रहे हैं, आंख खुली और मैं हूँ और मेरा अल्लाह है। इट्स सच अ गुड एंड पावरफुल फीलिंग कि वो चीज आपसे कोई नहीं ले सकता। एज लॉन्ग एज यूर लाइफ यू हैव दैट बिग स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक दैट एंकर इज द वन दैट इज अल्टीमेट, दैट मैटर्स द मोस्ट। और मुझे पर्सनली तो ये बहुत ज्यादा एक पावरफुल चीज और स्ट्रेंथनिंग चीज लगती है कि व्हेन यू हैव वो आपका एक तकिया, वो आपका मान, आपका भरोसा अल्लाह की जात पे, वो एक लिंक आपका जो अल्लाह से बन गया है। आई थिंक दैट्स नथिंग कैन रिप्लेस दैट फीलिंग व्हेन यू डेवलप दैट फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल, और वो कोई चीज़ जैसे आपने भी कहा कि वो आपसे कोई ले नहीं ले नहीं सकता, सकता। और किसी को आपने वो चीज़ प्रूफ भी नहीं नहीं करनी है, करनी। इट्स यू एंड योर क्रिएटर। यस। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देती है। लुबना, इसमें हम आपने शुरू में बात की, एंड आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी आपसे बात करते हुए टू रिफ्लेक्ट also on our medical fraternity and how we do things. So it should be a reminder to all the healthcare professionals, and kind of a mirror as well to what we're doing to in our fields as a healthcare provider. डॉक्टर को जब एक मरीज देखता है तो वो बहुत एक होप से और एक उसकी बिल्कुल पैराडाइम डिफरेंट होता है जब बहुत चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपकी ट्रीटिंग फिजिशियन पे, आप जिस तरीके से बात करते हैं। देखिए, हम लोग एज डॉक्टर्स, हम लोग जब अपनी पोस्ट ग्रेड की स्टडीज में जाते हैं, कोई भी हमारी डिग्री या स्पेशलाइजेशन होती है, तो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, एंड वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी वर्कशॉप इज कम्युनिकेशन वर्कशॉप। ठीक है, उसमें हमें बताया जाता है हाउ टू ब्रेक बैड न्यूज। ब्रेकिंग बैड न्यूज का एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट होता है, बहुत सी फॉरेन इंटरनेशनल और एग्जामिनेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चेक किया जाता है डॉक्टर्स को। इन योर एक्सपीरियंस, इन योर जर्नी, how was your what's your take on this whole thing? Are you satisfied by the way doctors and healthcare providers have treated you in communication? I'm not talking about कि treatment की क्या progress थी, कुछ इस बातचीत, how they broke the news to you। जैसे आपने कहा था कि जब साइड पे लेके जाओ तो आपके जहन में होता है कि अच्छा देयर समथिंग रॉन्ग, लेकिन प्रॉपरली न्यूज़ को ब्रेक करना, फिर उसके बाद गिविंग यू टाइम टू एब्जॉर्ब इट, एंड देन टॉकिंग यू टू द वे फॉरवर्ड कि आगे कौन से प्रोसेसेस हैं। बिकॉज हो सकता है कि जो डॉक्टर ओपीडी में बैठा हुआ है या अपने क्लिनिक में बैठा हुआ है, उसका कोई चौथा या पांचवा पेशेंट हो कि वो अंदर आया है, उसने वही चीजें दोबारा बतानी है। बहुत हो गया तो कैंसर डायग्नोसिस फर्क होगा, मतलब एक अगर पेट का नहीं है तो वो लंग्स का होगा, लंग्स का नहीं है तो ब्रेस्ट का होगा, लेकिन पेशेंट है।
बट जो पेशेंट आया है वो घर से चल के आया है, उसके इतने खदशात हैं, ओपीडी में वेटिंग रूम में बैठ के उसने अपने आसपास लोगों को भी देख रहा है, हो सकता है ऐसे पेशेंट को भी देख रहा हो जो उससे बहुत एडवांस स्टेज का है, बहुत बुरी कंडीशन में है, हो सकता है बिल्कुल हॉस्पिटल में किसी और डिपार्टमेंट से गुजर के आ रहा हो जहाँ पर लोग खुश हैं, जैसे गायनी ऑब्स हैं, बच्चा डिलीवर हुआ, ये तो कितना चीजें हैं ना, देयर सो मेनी वेरिएबल्स, वो सब चीजें एक पेशेंट के जहन में गुजर रही हैं और वो अंदर जाता है, एंड यू जस्ट आई थिंक नंबर 4 ऑन द लिस्ट, एक 3 गुजर गए, अभी चौथा है। ऑल्दो हम वी आर वेरी सेंसिटाइज्ड टू दिस थिंग कि नहीं हमने ऐसे बात नहीं करनी, बट अलोंग द वे इट ऑल्सो हैपन्स, तो जगह जगह पे डिपेंड करता है हाउ यू गेट द रिस्पॉन्स। आपके जर्नी में आर यू सेटिस्फाइड बाय द वे डॉक्टर्स हैव कम्युनिकेटेड विद यू, or do you think there's room for improvement anywhere, wherever it is, just let me know. डॉक्टर मैम, मेरा जिन डॉक्टर्स के साथ आई इंटरेक्टेड ड्यूरिंग दिस जर्नी, I would divide them into, you know, two segments, two very clear segments. Okay. एक वो जो कि बहुत considerate थे Hmm. और हैं भी अभी भी, and they were preparing you, you know, और also taking care of your mental well-being and also suggesting कि अगर support चाहिए, so we have this kind of support as well. Hmm. और दूसरे वो डॉक्टर भी, उनसे भी इंटरेक्शन हुआ जो कि यू नो हु इवन गॉट ऑफेंडेड कि अच्छा उस डॉक्टर से क्यों ट्रीटमेंट हो रहा है, ये तो हमारा केस था Hmm. एंड ट्रीटमेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यू नो, आई एम सिटिंग देयर, आई एम आस्किंग यू कि अच्छा मेरी ये सर्जरी होनी है, यू हैव टू गिव अ गो अहेड टू मी, सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू आर सेइंग कि आपकी तो ट्रीटमेंट का बहुत माइनर सा इफेक्ट हुआ है। तो इस तरह के Hmm. डॉक्टर्स भी थे, और दूसरी तरफ मेरी अपनी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो भी हैं Hmm. जिन्होंने क्योंकि आपके सेकंड कीमो के बाद यू नो दैट द हेयर लॉस स्टार्ट्स, Hmm. तो वो फर्स्ट कीमो के बाद और सेकंड कीमो की जब मैं कंसल्टेशन के लिए उनके पास गई तो शी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग में कि यू नो ऐसा करें कि उस वक्त बाल लंबे थे, एंड शी सेड कि आप बाल अपने छोटे करवा लें। आई वाज लाइक कि क्योंकि वो क्लिक नहीं किया कि क्यों Hmm. करवा लें या क्यों वो Hmm. सजेस्ट कर रही हैं। तो शी सेड कि आपके शायद हल्के हल्के बाल तो नहीं गिर रहे। मैं कहा Hmm. हाँ शायद गिर रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है वेदर की वजह से हो, क्योंकि वो Hmm. क्लिक आप उस वक्त ना तो आप Hmm. शायद वो बिलीफ आप वो सुनना चाहते हैं, ना आप Hmm. वो एक्सेप्ट करते हैं कि ये आपके साथ ये सब कुछ होना है। अम, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें लुबना कि आप छोटे करवा लें, क्योंकि ये ज़्यादा गिरेंगे आपके तो वो बाल आपसे संभाले नहीं जाएंगे। और Hmm. मेरे से उस वक्त सिर्फ ये निकला कि अच्छा, अभी तो थोड़े अरसे पहले मैंने इन्हें स्ट्रेट करवाया है। एंड शी वाज लुकिंग टुवर्ड्स मी कि ये कह क्या रही है, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं रजिस्टर हुआ कि वो क्यों ये सारा कुछ हाँ, कह। फिर हाँ, उसके बाद समझ आया कि जब थोड़े से और ज्यादा एकदम से गिरने शुरू हुए तब फिर समझ आया हम्म, कि अच्छा तो ये तो इस वजह से कह रही हैं। या जब पोस्ट हिस्टेक्टमी, क्योंकि कंप्लीट हिस्टेक्टमी थी तो इट वाज यू नो काइंड ऑफ फोर्स्ड इंड्यूस्ड मेनोपॉज, जाहिर सी यस, बात। तो वो मूड स्विंग्स का उन्होंने कहा कि क्या आपको गुस्सा आता है या कुछ आप अलग से समझ रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी क्योंकि एकदम से ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया, सर्जरी हुई और उसके बाद यू नो इट हैपेंड मेनोपॉज। तो वो भी कि अच्छा वो तो शायद वैसे ही आप आपस में बात करते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो जाती यस, है, शायद इसकी वजह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दिस इज मेडिसिन कि अगर लगे कि हो रहा है तो ये तुम ले सकती हो, या लगे कि हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तब ये वाली टैबलेट तुम ले सकती हो। अब वो ना हॉट फ्लैशेस की समझ आए कि हॉट फ्लैशेस क्या क्या होते हैं, किस होता है, तरह के होते हाँ, हैं। तो वो लेकिन शी वॉज देयर, तो इस तरह के भी। और साथ में उन्होंने कहा कि अच्छा अगर फिर भी कोई मेंटल सपोर्ट चाहिए तुम्हें, तुम्हें हम्म, लगे कि किसी भी वक्त कोई सपोर्ट चाहिए, हम्म, सो वी ऑफर दैट सपोर्ट एज वेल। हम्म, तो वो एक तरह उस तरह के डॉक्टर्स हैं जिनके साथ में जो मेरे साथ हैं मेरे इस जर्नी में, जो इस पूरी ट्रीटमेंट को लीड कर रही हैं। और दूसरी हम्म, तरफ वो भी थे जिन्होंने सामने बैठ के कहा कि नहीं ये तो ट्रीटमेंट कोई फायदा ही नहीं हुआ है, और हम्म, इससे तो ट्यूमर बिल्कुल भी कोई उसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं आया है, तो ये कैसी ट्रीटमेंट हो रही है। तो वो दोनों तरह हम्म, के डॉक्टर्स जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। हम्म। बट ऑन द होल अगर आपको मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट में कर रहा हूँ तो आर यू सेटिस्फाइड, यस नो, आई नो इट्स नॉट अ यस नो क्वेश्चन जिसे आपने कैटेगराइज किया, बट एक होता है ना कि आपका एकदम से दिल ही बुरा हो जाता है कि नहीं बस डॉक्टर्स है ही, मतलब ये ट्रीटमेंट है ही किसी काम की नहीं, या कोई फायदा नहीं है, इस तरह की कोई नेगेटिव वो तो नहीं हुआ ओवरवेलमिंग? नहीं,
नहीं, ओके, ओवरवेलमिंग बिकॉज इस इट्स तरह से। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ओवरऑल फील कैसा है, क्योंकि वो सब आपकी कंप्लायंस, आपकी हीलिंग का पार्ट बनता है। वट एवर यूर थिंकिंग, इट ग्रेटली इम्पैक्ट्स। चाहे वो आपका, जिस तरह आपने बताया कि हेयर लॉस का मसला हो सबको, अब फॉर डॉक्टर्स इट्स लाइक कोई रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी की अच्छा चीज़ें चल रही हैं, तो वो एक यूजुअल साइट है कि लोगों का शेप हेड करके आ जाते हैं या इस तरह की चीज़। लेकिन एक पर्टिकुलर पेशेंट, उसके लिए तो नई नई चीज है ना, पहली दफा हो रहा है, तो इट इट इज सो इम्पोर्टेंट उसका बाल, जैसे आपने कहा कि मैंने अभी स्ट्रेटन करवाए हैं, सो इट वाज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई थिंक मेरे फेलो कुलीग्स, हम लोग एक हमारा एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी एज ए ह्यूमन बीइंग, बिकॉज आप वरना आपको फटीग बर्न आउट हो जाते हैं जब आप बहुत इंटेंसिवली चीजों को करते हैं। बट देर ऑलवेज ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। आप चीजों को सीख सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ता है, आपको पेशेंट को डील करना, लोगों को के साथ एम्पथाइज करना। डजेंट मीन वी हैव टू बर्न आउट इन द प्रोसेस एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ डॉक्टर। मैं अपने डॉक्टर्स कोलीग्स से बात कर रही हूँ कि अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो वी हैव टू रियली एम्पथाइज एंड बी इन द अदर पर्सन शू, कि अच्छा इसके लिए चीज नई है, सो लेट मी गिव हिम ड्यू डिलिजेंस एंड उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। सो यस, मेंटल हेल्थ मेडिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सी चीजें, जैसे आपको आपका मेनोपॉज एकदम वो चीजें फीलिंग स्टार्ट हो गई मेंटली भी, बॉडी की सेंसेशंस भी। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है, समटाइम्स यू आर हैविंग सम सोमेटाइजेशन, या आपकी सोमेटिक फीलिंग्स ऐसी हो रही होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती, इज इट द डिजीज दैट्स कॉजिंग इट और इज इट बिकॉज ऑफ माई एंजाइटी इट्स हैपनिंग। एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स टू डिफरेंशिएट ना। तो उसमें भी ये है कि obviously we do start patients, we start them on anti-anxieties and all that, and there's no harm in that. I mean, being a doctor myself, मैं बहुत मेरा थ्रेशोल्ड बहुत हाई है एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेसेंट्स को स्टार्ट करने का। थ्रेशोल्ड हाई का मतलब है कि मैं बहुत देर बाद, ऐसा नहीं है कि ओपीडी में आया कोई पेशेंट तो फौरन ठक करके, नहीं, आई ऑलवेज गो फॉर गिविंग देम कैपेसिटी बिल्डिंग टूल्स जो होते हैं, यानी डिसीजन कैसे करना है, जिसमें आपकी साइकोथेरेपी आ जाती है, हेल्पिंग एड्स आ जाते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आ जाती है कि किस तरीके से सोचना है। लेकिन कुछ इस तरह के बाकी केसेस होते हैं, जैसे आप कैंसर ट्रीटमेंट्स चल रही हैं और बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस जिसमें आपको पेशेंट को स्टार्ट करना पड़ता है मेडिकेशन से, एंड थेरेपी हेल्प्स अलोंग द वे। तो दोनों का एक एक साथ सपोर्टिव उसका फ्लो आता है। सो डू यू थिंक वाज इट इजी फॉर यू टू एक्सेस टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी? आर यू अ पार्ट ऑफ वन? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? बिकॉज हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन रेजोनेट के थ्रू के इस तरह का हमारा पेशेंट पूल और विलिंग इंडिविजुअल्स हों, जिसमें उनको आपस में, जैसे ग्रुप थेरेपीज होती हैं, सपोर्ट थेरेपीज होती हैं, बाज दफा यू डोंट नीड अ डॉक्टर टू टॉक, यू नीड जस्ट अ सिमिलर पर्सन इन अ सिमिलर सिचुएशन। मतलब दो कैंसर पेशेंट्स, पांच कैंसर पेशेंट्स आपस में बैठ के बात करें, वेंट ऑफ करें, एक दूसरी की फीलिंग्स वैलिडेट करें, देयर इज वन मॉडरेटर जो उन सब से बात करे। सो वाज इट अवेलेबल टू यू, or did you find it hard to get access to? मसला ये है डॉक्टर मेमा कि इन पाकिस्तान वी डू नॉट हैव सपोर्ट ग्रुप्स, Hmm. और या बहुत से लोग दे डू नॉट स्पीक, कि Hmm. शायद एक मुझे एक चैलेंज जो उस वक्त आया कि जब मैं ढूंढ रही थी कि मैं किससे बात करूं या किसके साथ बात हो सकती है पेशेंट्स के साथ, Hmm. तो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बाहर के बहुत सारे ग्रुप्स मिले और जो कि बहुत Hmm. एक्टिव भी हैं। लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा ग्रुप मुझे नहीं मिला जहाँ पे लोग इंटरेक्ट कर रहे हों। एंड देन आफ्टर अ वाइल माय ऑन्कोलॉजिस्ट शी सेट अप अ सपोर्ट ग्रुप ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो मैं उनको Hmm. कहती हूँ कि ओवेरियन कैंसर के लिए भी कुछ स्टार्ट करें, Hmm. क्योंकि जाहिर सी बात है हर कैंसर के अपनी स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स होते हैं। जी। आप उन्हीं लोगों से आप बात करते हैं और आप उसको इतना इंक्लूसिव नहीं बना सकते हैं। तो वो जो फेसबुक का एक ग्रुप है जिसके अंदर मैं हूँ, दैट रियली हेल्प्ड मी, क्योंकि उसमें लोग ओपनली बात करते हैं। पाकिस्तान में शायद एक तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अगर हमने बात कर ली, किसी को पता चल गया Hmm. तो लोग क्या कहेंगे वाला जो एलिमेंट है, वो Hmm. बहुत ज़्यादा लोगों को इनहिबिट करता है कि बात नहीं करनी है। लेकिन अगर ऐसी कोई स्पेस होती है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। और इसीलिए फिर मैंने भी ओपन होना शुरू किया कि अच्छा, मुझे शायद वो स्पेस नहीं मिली, लेकिन शायद मेरी बात किसी और कोई बात करना चाहे,
या कोई ये सुन के किसी को उससे सपोर्ट मिलती है, तो आई शुड स्पीक अप अबाउट इट। और इसी तरह से एक और खातून को ही मैं वहीं से कीमो सेंटर में, आप बहुत से लोगों को मिलते हैं, आपकी बहुत अच्छी दोस्तियां हो दोस्ती जाती हैं वहाँ जी। के लोगों के साथ। तो वहीं पे मिली, शी ऑल्सो रिकॉर्डेड, शी यूज टू बी ऑन यूट्यूब। उनका हम्म ब्रेस्ट कैंसर का था, तो उनके साथ मिलकर कुछ रिकॉर्डिंग्स की। शी वॉज क्वाइट वोकल अबाउट इट। लेकिन यही हम लोग आपस में बात करते थे कि लोग बोलते नहीं हैं, बात नहीं हम्म करते हैं पाकिस्तान में। तो जब तक बात नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, जब तक बात नहीं करेंगे या किसी से पूछेंगे नहीं, या अपनी इस, आप खुद किसी को बताएंगे नहीं, तो लोगों में वो अवेयरनेस नहीं आएगी। तो वो फिर इसी तरह से चलता जाएगा। जैसे अब मैं पढ़ती हूँ, या अब अगर मैं जिस ग्रुप का मैं बात कर रही हूँ उसमें कुछ लोगों से बात हुई या वैसी सिम्टम्स के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे कई लोगों को कफ हुई और उससे फिर ये डायग्नोज हुआ, कई खवातीन के साथ ये हम्म इशू। अगर मुझे पता होता कि कफ, इतनी प्रोलॉन्ग कफ से आपका ये भी हो सकता है, तो शायद मैं पहले टेस्ट करवा लेती, शायद अर्ली डिटेक्शन हो जाती। या आपस में भी हम फ्रेंड्स भी बात करते हैं या कोलीग्स भी बात करते हैं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो अब पता चलता है कि अच्छा ये सिम्टम्स हैं। लेकिन क्योंकि बात ही कभी नहीं हुई, कभी सुना भी नहीं, कभी किसी ने उस से शेयर भी नहीं किया, या खुद शायद कभी खुद भी एक्सप्लोर नहीं किया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचते भी नहीं है कि आपको सोचते कैंसर हैं हो। तो एग्जैक्टली। वो अगर लोगों में ये अवेयरनेस हो, तब उससे शायद अर्ली डिटेक्शन की तरफ भी ये मामला जा सकता है। हम्म और अवेयरनेस अगर हो लोगों में, और अगर कोई ऐसा पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अर्ली डिटेक्शन वाला एलिमेंट तो है ही नहीं, हमारे हम्म रेगुलर चेकअप्स नहीं होते, हम करवाते भी नहीं है, ज़रूरत पड़ती है तब फिर हम डॉक्टर के जाते हैं या हम कोई टेस्ट हम्म करवाते हैं। हम्म तो अगर कुछ ऐसा ऐसी इन्वायरमेंट हो जाए यहाँ पे भी कि अर्ली डिटेक्शन की तरफ हम जा सकें, बच्चियों में, क्योंकि अब अगर आप देखें तो बहुत अर्ली एज के अंदर भी ये सब ये कैंसर्स हो रहे हैं। हम्म अगर कुछ बच्चियों के अंदर, क्योंकि बच्चियों के अंदर में इसलिए कि इट्स नॉट के सिर्फ बच्चियों में या खवातीन में ही कैंसर हो रहा है, हम्म सारी सी बात है, मर्दों में, बच्चों में भी बहुत कैंसर फैल रहा है। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए खवातीन की बात करती हूँ, क्योंकि खवातीन जो हैं बहुत लो प्रायोरिटी पे आते हैं। आप जब रिसर्च देखते हैं सारे ओवेरियन कैंसर के ऊपर या बाकी फीमेल रिलेटेड गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के ऊपर भी, तब वो बहुत नीचे है कंपेयर टू अदर कैंसर्स। हम्म और अगर इसकी सपोर्ट देखें, हम इसकी मेडिकेशन देखें, मेडिकेशन के ऊपर रिसर्च देखें, तब वो भी इतनी अप टू डेट नहीं नज़र आती। हम्म और गिवन द करंट सिनेरियो, तो वैसे ही इसके ऊपर इतना, हेल्थ के ऊपर कोई फोकस नहीं है ग्लोबली भी अगर हम देखते हैं तो इस वजह से मैं खवातीन के बारे में और खवातीन के कैंसर के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ कि वो ज़्यादा फोकस उसके ऊपर चाहिए है। तो शायद बच्चियों में, शायद यंग एज के अंदर भी, और मेरी उम्र की खवातीन में भी, बाकियों के साथ भी अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हर साल ज़रूर बात होती है। अ, वो एक अच्छा है, उससे कम से कम कुछ खवातीन ने एटलीस्ट मैमोग्राफी अपनी रूटीन में शुरू करवा ली, जी। रेगुलर करवा शुरू कर दी है। इसकी अ, गाइडलाइंस भी चेंज होती रहती हैं, जैसे ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर का है तो हम लोग अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोग एडवोकेसी और हेल्थ अवेयरनेस की करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं खवातीन की, स्मॉल वर्कशॉप्स करते हैं जिसमें उनको साइन एंड सिम्टम्स बताया जाए, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द कैंसर जिसमें बहुत अच्छा अर्ली अगर पिकअप हो जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रेट है। डिजीज प्रोग्रेशन का भी कुछ कैंसर जितने डिफिकल्ट होते हैं, जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर बहुत लेट, उसका डायग्नोसिस ही बहुत लेट होके जाके होता है, जो अर्ली नहीं आता। फिर जैसे पेट में स्पेस बहुत ज्यादा है तो जैसे ओवेरियन कैंसर हो गया, या कोई अगर ऐसा कैंसर नहीं है जिसके आपको ओवरटली सिम्टम्स आ जाएं, तो वो कैंसर ग्रो करता जाता है, फिर आपको उस स्टेज में डायग्नोज होता है जब आपके सिम्टम्स काफी एडवांस्ड हुए हुए होते हैं। सो वो चीज है मसाइल, लेकिन हाँ वी हैव सम जेनेटिक टेस्टिंग्स, बट थोड़ा सा हमने जो देखा है वो अभी पीपल आर नॉट प्रोन टू दैट समहाउ। अभी हम लोग का, आई एम नॉट पिकिंग ऑन any particular डिसिप्लिन इन माय मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन शायद उतने ही पैसे खवातीन जो हैं वो जाके अपनी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटोलॉजी वाले बोटॉक्स पे लगा लेंगी, बट
अगर मैं उनसे बोलूंगी कि आप ये जेनेटिक टेस्टिंग कर लें, हम लोग की टेस्टिंग है, हमारी कंपनी करती है बरका 1 एंड बरका 2 टेस्टिंग, तो वो खवातीन को बहुत महंगा पड़ता है। वो दे से कि नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, और हमारी फैमिली में चूंकि रिस्क है तो वी डोंट वांट टू गेट टेस्टेड। होना हुआ तो देख लेंगे, उस वक्त देख लेंगे। और टेस्ट की वजह से, टेस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि हमारी रिस्क इंक्रीज है, और उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें ट्रीटमेंट मिल जाएगी। तो व्हाई शुड वी गेट टेस्टेड, एंड व्हाई शुड वी नो वक्त से पहले किसकी टेंशन, मतलब इस तरह की सारी बातें हैं जो हमें सुननी पड़ती हैं आगे। बट हैविंग सेड दैट, वो वही अमाउंट ऑफ मनी वो आराम से जाके पार्लर में और उसमें लगा लेंगी, जस्ट फॉर देयर ट्रीटमेंट। सो आई थिंक इसमें प्रायोरिटीज की बात है कि हमारी एज अ कम्युनिटी, हमारी प्रायोरिटी हेल्थ सीकिंग बिहेवियर उस तरह नहीं है शायद। प्रॉबेबली अपेरेंटली खूबसूरत दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन healthy life, actually living healthy, is not on the priority. Yes, you should look like a good person on the apparent surface. अच्छा, आपकी कोई विश लिस्ट है? डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ चोर्स दैट यू हैव बीन पेंडिंग ऑन, कि अच्छा मैं जिंदगी में कभी करूंगी, एंड नाउ डिड यू हैव टाइम? क्या आपने कोई प्रायोरिटाइज किए ऐसे टास्क से चोर्स दैट यू हैव अ विश लिस्ट? यूजली बच्चों में इस तरह बहुत होता है। आप अगर देखें, कोई इफ दे हैव कैंसर एंड दे हैव देयर विश लिस्ट, उनसे उनसे बनवाई जाती है। डू यू हैव सम चोर्स लाइक दैट प्लान्ड? अ, उस तरह से तो नहीं डॉक्टर मैम, लेकिन आई थिंक सम ऑफ द एक्टिविटीज और हॉबीज दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू, उनको मैं अब टेक ऑफ कर रही हूँ। हम्म। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक बहुत कुछ शौक है मेरे, जो कि जिनको घर वाले कहते हैं कि तुम्हारे शौक बहुत अजीबो-गरीब से। I Like, wanted to learn I wanted to learn leather making, और oh, great. I wanted to learn carpet weaving as well. So अभी Oh, कुछ पहले I learned how to stitch a wallet. So that was a very very interesting experience, nice. पूरा हैंडमेड, तो वो सारा इस तरह से। बाकी ये है कि क्योंकि अभी उतना स्टेमिना नहीं है, कुछ अपने ट्रैवल Hmm. प्लान्स जो हैं वो रुके हुए हैं अभी। आई Hmm. हैव फ्रेंड्स, हम 3 फ्रेंड्स हैं Hmm. जो कि हम इकट्ठा ट्रैवल करते हैं, तो वो भी मेरे वजह से वो रुकी हुई हैं सारी। Okay. सो होपफुली सून वी आर गोइंग टू टेक मेक अ प्लान के कुछ कर सकें, तो वो Hmm. कुछ रोका हुआ है। बाकी यही है कि बाकी चल रहा है इस पार्ट ऑफ लाइफ सारा कुछ। Livna, I won't keep you for so long. अभी इतने टाइम से हमने आपको engage किया हुआ है. I know you need rest as well. बस just couple of things that I wanted to ask. देखिए, हम जब बात करते हैं, अभी जैसे मैंने विश लिस्ट की बात किया, बीइंग मुस्लिम वी नो कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। इंसान को अपने लिए आफियत, सेहत, सब चीजें मांगनी चाहिए। ऑफ कोर्स नोबडी विशेस इल हेल्थ या सिकनेस अपने लिए कोई नहीं मांगता, और ना ही मांगना चाहिए कि कोई भी सब्र या चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं मांगनी चाहिए, हमेशा आफियत मांगनी चाहिए। लेकिन इंसान की जिंदगी जो है चलते फिरते भी खत्म हो जाती है। बाज दफा सोते सोते लोग फौत हो जाते हैं, बाज दफा चलते फिरते फौत हो जाते हैं। सो यू डोंट नीड टू हैव cancer or big things to die. You can die with anything, and suddenly people die accident में कुछ भी। I think जब इस तरह की situations आती हैं, challenging situations, तो at least आपके पास इतना time होता है कि आप अपने मामलात मुनज़्ज़म कर सकें, अपने रिलेशनशिप्स फिक्स कर सकें, लोगों को माफ कर सकें, उनसे माफी मांग सकें, अपने अल्लाह से एक हॉटलाइन स्टैब्लिश कर सकें। डू यू थिंक योर कैंसर जर्नी हैज गिवन यू ऑल दोस अपॉर्चुनिटीज? हैव यू रिकग्नाइज दोस? यस, जैसे मैंने शुरू में भी हमने बात की कि अल्लाह से कनेक्शन की जब हम बात हम्म। कर रहे थे, कहते हैं कि वो स्ट्रेंथन हुआ। तो आई थिंक वो इसी वजह से हुआ क्योंकि आपको एक एंकर, एक पिलर चाहिए होता है टू हम्म। कीप यू मोटिवेटेड। तो वो फेथ जो है, वो एंकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ मेरा इस सारी जर्नी के अंदर। जहाँ तक लोगों को माफ़ करना और आगे चलने की ज़रूरत है, तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, आपकी ज़िंदगी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ हम्म। को आप उस माफ़ कर देते हैं, कुछ को आप कहते हैं कि अच्छा, डिफिकल्ट होता है। फिर डिफ़िकल्ट होता है, बहुत या ज़्यादा डिफ़िकल्ट या होता है। लेकिन यही समझ आई, एक तो इस जर्नी से और इससे पहले जो सारा कोविड वाला टाइम भी था, उससे भी यही हम्म। समझ आई कि ज़िंदगी बहुत एक इट्स अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, कि आपको नहीं पता। यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो फिर भी पता है कि आपके पास एक डायग्नोसिस है और उसके साथ आप लड़ रहे हैं। एट टाइम्स आपको नहीं पता होता, एक्सीडेंट है, बाहर निकले बैठे हम्म। हुए, कुछ भी हो सकता है। ये तो किसी को नहीं पता कि कब किसने जाना एग्जैक्टली। है।
तो इस वजह से जिंदगी छोटी है, लोगों को माफ कर देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। दूसरा भी, आज सुबह ही हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे रात का सारा डेवलपमेंट हुई रात को, तो वो अब यू नो कोई ग्रजेस लेकर चलने का कोई फायदा नहीं होता। वो आपको ही एट टाइम्स पुल बैक कर रहे होते हैं। आप कभी भी बैठे हो उन चीज़ों को, कभी भी सोच आ जाती है इंसान को कि अच्छा उसने मेरे साथ ये किया, मैंने ये किया, तो अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, ये कर लेते तो वो हो जाता। तो ग्रजेस आपको ही पुल बैक करते हैं, तो इन चीज़ों को इतना साथ लेकर चलना नहीं चाहिए। हाँ, ज़ाहिर है इंसान है, कुछ चीज़ें आपको टाइम लगता है भुलाने में, कुछ चीज़ें आप जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। लेकिन अच्छा है कि जितनी जल्दी आप उन चीज़ों से निकल जाएं और अपने ऊपर फोकस करें। आपके आसपास जो लोग हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपको पता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा फेयर हैं, उनका ख्याल रखें और पॉजिटिव तरीके से चलें। लुबना, any message, any advice you want to give to people जो आपकी तरह जिस सिचुएशन में हैं, कैंसर को फाइट कर रहे हैं, और या कोई मैसेज शाउट आउट आप किसी को देना चाहें बिफोर वी गो? मैं ये कहूँगी डॉक्टर उमैमा कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऐसी चेंज आए जो कि नॉर्मल से हट के हो, और अगर वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, तो उसको टाइम मत दें। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि टाइमली और सही डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो रही हो तो उसे डोंट पुट असाइड के अच्छा देख लेंगे या हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि अगर हेल्थ है तो आप आगे चल सकते हैं। हेल्दी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान के लिए। और इस चीज़ से मत घबराएं कि पता नहीं क्या, अगर हम डॉक्टर के पास गए तो अगर ये डायग्नोसिस हो गई तो इस हम्म। डर से हम जाएं ही ना। हम्म। तो ये चीज़ ना करें अपने साथ, और कोशिश करें कि जल्द ही जो भी आपके साथ हो रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करें और उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो उस चीज़ का ट्रीटमेंट्स फायदा हैं। उठाओ, तो सिर्फ जी। पेपर्स तक ही ना रहने दें। So I really हम्म। wanted to say that. थैंक यू सो मच लुबना, आपने इतना टाइम दिया एंड वी हैव केप्ट यू फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुकम्मल शिफा याब करे, आपको सुकून दे, आपको आफियत दे, आपको खुशी दे। और इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन टॉकिंग। Thank you so much. You've been hope beam of courage for so many people out there. बहुत लोग आप जैसे, we don't know कितने लोगों ने ये बात सुनी होगी, and looking at your courage, they can also get hopeful, and that makes all the difference, to be hopeful in whatever situation you are in. So jazakallah once again, thank you so much for your time, and inshallah फिर बात होगी। Thank you Thank very you. much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.